So, very good morning. Welcome to everyone. Welcome to our classes. So, in this session, we will start with the concept of physics, very first topic of physics, that is electrostatics. क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेशन फ्रॉम फॉर क्लास 12th. ठीक है, तो क्लास 12th की जो शुरुआत होती है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक. कहाँ से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फिजिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Here the word electrostatic. Here the word electrostatic, that is for electro plus statics. Electro plus statics. Electro means electricity. Static means rest. So electrostatic means electric charge produced by electric field produced by charge at rest. Electric field produced by charge at rest. ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट स्टडी वी विल डू इन दिस चैप्टर. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज इन रेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं. या ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस द फिनोमेना ऑफ चार्ज एट रेस्ट. डिस्कस द फिनोमेना ऑफ चार्ज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट में है तो उसके कौन कौन से फिनोमेना है, दैट वी विल डिस्कस. First thing, that is the one word that we are discussing here, that is charge. What is charge? Charge क्या है? What is charge? What is charge? क्या होता है charge? No? What is charge? If I say charge, you know it has two polarity, positive charge and negative charge. That is answer given by Dipender, but it is not the definition of the charge. Yeah. It is the intrinsic property of any matter. Intrinsic property of any matter required for electrification. Required for electrification. Without charge, body can't be electrified. Body can't be electrified. बॉडी को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हैं बिना चार्ज के. कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. ठीक है, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक नेचर, to electrify body. Basic thing, fundamental thing that required in body, that is charge. Without charge we will not discuss about electric field, about electric potential. Nothing related to electricity is possible without charge. चार्ज के बिना कुछ भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है. कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है. सबका सब जो डिपेंडेंसी है किस पे ऊपर है? चार्ज पे है. किस पे बेटा? चार्ज पे है. ठीक है, so we are discussing about charge. Charge is intrinsic property of any substance for the electrification. Now, properties of the charge. Properties of charge. Properties of charge. First thing, charge are two types. Type of charge. There are two types. कितने टाइप का होता है? Two types. Which one? Positive
and second one is negative. We have two kind of charge, positive charge and negative charge. ठीक है. Second property, conservation of charge. Conservation of charge. What is the conservation of the charge? चार्ज का कंजर्वेशन से आपका क्या मीनिंग है? चार्ज neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another body. So for the charging process, we can't produce new thing, but we can transfer only charge from one body to another body. So transferring unit, that unit that we are transferring, that is the electron. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Quantization of charge. You know here word quantization, that means one quanta. If I say one quanta, that means one electron. One electron. So basic unit of the charge or fundamental unit of the charge, that is electron. Fundamental unit of the charge or basic unit of the charge, that is one electron. That is called one quanta, one packet. That is called one quanta, one packet. So meaning of quantization word, that means total charge of any body. Total charge of any body is always integer multiple of charge of one electron. Always integer multiple of charge of वन इलेक्ट्रॉन. इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. या तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. कभी ऐसा नहीं पॉसिबल है फ्रैक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकें. वी कांट ट्रांसफर 2.5, वी कांट ट्रांसफर 100.5. वी कैन ट्रांसफर ओनली इंटीजर वैल्यू ऑफ electrons. We can transfer only integer value of electron because till now we are assuming that electron are indivisible particles. Electrons are indivisible particle. No doubt electron भी divisible है, वो भी quark से बना होता है. किससे बना होता है? Quark से बना होता है. So quark has two type of quark we have, that is 2/3e. One quark has charge 2/3e. Other one has 1/3e. 1/3e. Okay. So minus 2/3e और minus 1/3e एड होगा तो क्या बनेगा? minus 2/3e plus minus 1/3e. तो कितना बनेगा? minus 3e upon e3, that is equal to e. Minus e, that is the charge of the electron, minus e. Charge of the electron minus e. Similarly, proton 2/3e plus 1/3e, that is equal to e. This is the charge of the proton. This is the charge of the proton. Similarly, 2/3e minus 2 into 1/3e. This is 0. That is the neutron. That is the neutron. So these elementary particle, electron, proton and neutron, also can divide in a smaller particle, that is known as the quark. That is known as the quark. But till now in electrostatic we are discussing only that electrons are indivisible particles. That's why concept of quantization applicable. Otherwise, if you are thinking that electron also can divisible, then this concept is not valid. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और क्या कर सकते हैं हम लोग? डिवाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज कैन ट्रांसफर, but till now it is not possible. Till now it is not possible. So that's why if anyone asks what is the one quanta charge, what is the one quanta charge,
If anyone asks one quanta charge, in your mind, you should know that is the charge of one electron. Charge of one electron. One electron को charge को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? One quanta charge. So one quanta equal to one electron charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So if question arise in exam, what is the value of one quanta charge in coulomb? What is the value of one quanta charge in coulomb? 1.6 into 10 to the power minus 19 in coulomb. समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत नहीं है. This is the property of quantization. Next property, additive nature of the charge. Additive nature of charge. Additive nature of charge. What is the additive nature of charge? What do you mean by it? Additive nature of charge. Additive nature of charge means if charge distributed in whole body at different part, so we can add that charge as algebraic sum. हम उसका algebraic sum कर सकते हैं. अगर एक बॉडी है जिसके अंदर अलग अलग जगह पे एक सिस्टम बना, यहाँ पे चार्ज Q1 है, this one is Q2, this one is Q3. In same way we have a Qn charge. Qn charge. So net charge on this body, total charge Q, that is summation of all elementary charge up to Qn. This is the net charge. This is the net charge, and this property is known as additive nature of the charge. If we have a body like this, we have 5 coulomb charge here, 10 coulomb charge here, 20 coulomb charge here, 50 coulomb charge here, then what is the net charge? Net charge of this system, that is 5 plus 20 plus 10 plus 50. What is the value? 85 coulomb. 85. This concept is clear. What is the additive nature of charge? That means if charge is distributed in the whole system, then we can algebraically add that charge to find complete charge. पूरा चार्ज फाइंड करने के लिए जितना भी चार्ज अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं? algebraically ऐड कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं. Next property that we will discuss, that is invariance of charge. Invariance of charge. Invariance of charge का मीनिंग क्या होता है? What is the invariance of charge? Invariance of charge. With the motion of the any object or any body, charge will always remain same. That means charge will not change with the moment. Charge will not change with the movement or with the motion of the body. बॉडी के मोशन के साथ, बॉडी के मूवमेंट के साथ चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा. चार्ज कंजर्व रहेगा. चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस प्रॉपर्टीज वेरी फ्रॉम मास बिकॉज with the motion of the object, with the motion of the object, mass will vary. Mass will vary, but charge will remain same. चार्ज विल रिमेन सेम. अगर तो तेरी बॉडी है, इस पे 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, अभी तो रुका हुआ है, तेरी इच्छा होगी कि तूने अपनी बाइक को लाइट की स्पीड से भगा दिया. किस स्पीड से भगा दिया? लाइट की स्पीड में. तो तेरा मास तो उस टाइम पे इनफाइनाइट हो जाएगा, बट चार्ज क्या रहेगा? 5 कूलम का सेम ही रहेगा. अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल, variation in the mass m equal to m naught upon 1 minus v square upon c square. As you increase the v, as mass will also increase. Mass will also increase.
अब आप पूछोगे सर ऐसा कहाँ होता है, हम तो बाइक भगाते हैं बहुत जोर से, मास उतना ही रहता है. But in that case, your speed v that is very less as compared to speed of the light c. लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, उसके कंपेरेटिवली आपकी बाइक की स्पीड क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसलिए आपको वो चीज फील नहीं होती. समझ में आ गई चीज. सो इनवेरियंस ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज विल नॉट वेरी विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ द चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज. So SI unit of charge, that is SI unit, that is Coulomb. क्या है SI unit? Coulomb. CGS unit, CGS unit, that is Franklin or ESU. ESU. You know what is the ESU? One ESU. 1 Coulomb equal to how many ESU? 1 Coulomb equal to how many ESU? Can you tell? Huh? 1 Coulomb equal to how many ESU? 3 into 10 to the power 9 ESU. 3 into 10 to the power 9 ESU, that is the 1 Coulomb. That is the 1 Coulomb. Another unit we also have for the charge, that is one as a EMU. EMU, that is electromagnetic unit. Electromagnetic unit. Electromagnetic unit. EMU, electromagnetic unit, or it is also known as Ebb Coulomb. It is known as Ebb Coulomb. You know, 1 EMU or 1 Ebb Coulomb, that is equal to 10 Coulomb. किसके इक्वल होता है ये? 10 Coulomb के इक्वल होता है. ESU means, you know what is the full form of ESU? Electrostatic unit. Electrostatic unit. Electrostatic unit or EMU, electromagnetic unit, that is also known as the Ebb Coulomb. AB, हाँ वो भी डिस्कस करेंगे. ये समझ में आ गई. One another unit, that is farad. That is farad. 1 farad, that is equal to 96500 Coulomb. 96500 Coulomb. So these all are the unit of the charge. Coulomb, Franklin, ESU, EMU, farad. ये सब के सब किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है. ठीक है. 1 Coulomb इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU. 3 into 10 to the power 9 ESU. 1 EMU or 1 Ebb Coulomb, that is equal to 10 Coulomb. And 1 farad, farad is also unit of the charge. 1 farad equal to 96,500 Coulomb. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं? पक्का? So these all are the properties of charge. ये सब के सब क्या थी? चार्ज की प्रॉपर्टी थी. कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. Now we will discuss about method of charging of any object. जैसे हमने पढ़ा कि we can only transfer charge from one body to another body. We can't generate new charge. So what are the method of transferring of charge? What are the method of transferring of charge? So very first method, that is the ancient method, that is friction. Friction. It is also known as friction electricity. It is also known as friction electricity. So what is the friction? What is the friction? That is the very important.
Friction means rubbing off to object. Rubbing off to object. How body will be electrified? How body will be charged with the help of friction? So when we rub any two object, when we rub any two object, what will happen? Heat will produce. Heat will produce. Due to that heat, one surface will lose electron, and that lost electron will be gained by other surface. क्या होगा? जैसे ही रबिंग करेंगे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को लीव करेगा एक से, और दूसरी सरफेस को क्या करेगी? गेन करेगी। एक सरफेस जो इलेक्ट्रॉन लीव कर रही है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। इलेक्ट्रॉन की कमी आई मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज कम हुआ। नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो बॉडी पे कौन सा चार्ज बच गया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा बच गया? पॉजिटिव। एंड द बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बड़ा है। इलेक्ट्रॉन बड़ा। Now which body will be positively charged and which body will be negatively charged? That is depend on work function of the body, nature of the object. Nature will define work function. So that is depend on the nature. So what is the nature of body? That is important. By the nature we will define work function. In scientific term we required work function. We required work function. You know what is the work function that is represented by the phi naught? Work function. Work function is minimum energy required to lose outermost cell electron. किसी भी सब्सटेंस के अंदर, कुलदीप, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नॉन एज वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू elimination of outermost cell electron from the substance is known as वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन से कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज आएगा? ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके सामने। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन दिया, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ दे रखा है। यहां पे है फ्रीक्वेंसी फाई नॉट 1, म्यू नॉट 1 और म्यू नॉट 2। एक्चुअली वी डिफाइन दिस एनर्जी फाई नॉट दैट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, फाई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट। So we have two object A and B. A and B. This represent the kinetic energy of the losing electron. So now, if I rub body A with the body B, if I rub body A with the body B, then which body will positively charge and which body will negatively charge? From this graph they can ask. Here directly work function is not given. Directly work function is not given. So now, we have to relate this concept with the work function from the loss of the electron. इलेक्ट्रॉन का लॉस वर्क फंक्शन में कैसे डिपेंड करता है? जिसको जब अपन दोनों बॉडी को ऐसे रब करेंगे, रब करने पे क्या होगा? दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? सेम हीट प्रोड्यूस होगी। अब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मीन्स उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसको अपना आप इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहां पे देखो इन दोनों में से वर्क फंक्शन ज्यादा किसका है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो बॉडी बी का फाई बी इज ग्रेटर देन फाई ए, दैट मीन्स दिस बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई चीज?
यहां पे आपको पूछे कौन दोनों में से कौन सी पॉजिटिवली होगी, तो बॉडी बी पॉजिटिव चार्ज आएगी क्या नेगेटिव, बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसमें वर्क फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में। ठीक है, अब यहां पे देखिए फ्रिक्शन से जो चार्ज जनरेट होगा, दैट चार्ज विल इफेक्ट द मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी और नॉट, मास को इफेक्ट करेगी, मास को इफेक्ट। पॉजिटिवली चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस डिक्रीज इन मास, मास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेगेटिवली चार्ज मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस मास विल इंक्रीज। अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, तीन न्यूट्रल बॉडी आपके पास है एबीसी, कितनी बॉडी है एबीसी, इसमें से मैंने ए को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, बी को न्यूट्रल रखा, सी को क्या कर दिया नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब मुझे बताओ सबसे भारी कौन है, पहले तीनों सेम थी, ए पॉजिटिव चार्ज होगी, बी न्यूट्रल और सी नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली सबसे ज्यादा होगी, तो सी ऑब्जेक्ट विल बी हैवियर देन बी एंड बी विल हैवियर देन ए। न्यूट्रल का सेम रहेगा पर ए का क्या हो गया, कम हो गया पॉजिटिव चार्ज आने के कारण। समझ में आगे चीज, कोई दिक्कत नहीं, मास पे इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है, दैट बॉडी मस्ट हैव मास। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास होना नेसेसरी है। If any body has charge, that means it will have mass. But if body have mass, it is not necessary to be a charge. मास होने पर चार्ज हो सकता है, पर चार्ज होगा तो मास तो होगा ही होगा। समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, तो ये फ्रिक्शन कंसेप्ट कंप्लीट समझ में आ गया कि फ्रिक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन में, फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल भी आपको दे रखे होते हैं, जैसे ग्लास रोड है, क्या है, ग्लास रोड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो ग्लास रोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से केट स्किन और एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होगा इसका मतलब कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और कैट स्किन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरह वुलन क्लॉथ और एम्बर रोड, वुलन क्लॉथ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, एम्बर रोड पे क्या आएगा, नेगेटिव। वुलन कोट और प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट पे पॉजिटिव, प्लास्टिक पे क्या आएगा, नेगेटिव, और वुलन कोट पे पॉजिटिव। ठीक है, वुलन कारपेट और रबर शूज, रबर शूज पे नेगेटिव और वुलन पे नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ मैंने एग्जांपल लिखा था, जैसे फर है, फर, कैट फर जो होती है, उसको किसी के साथ आप क्या कर दो, रबिंग कर दो, उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इट हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। ऑर्डर लिखा था ना मैंने आपको, 15 चीजों का लिखा थे, फर है, देन फेनल है, देन सीलिंग वैक्स है, ग्लास, कॉटन, इस तरह से आपका ऑर्डर है, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का अगर रबर के साथ करें क्या होगा, रबर के साथ ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, रबर पे क्या आएगा, नेगेटिव, ह्यूमन बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी के साथ करेंगे एबोनाइट रोड के साथ, एबोनाइट रोड पे क्या आएगा, नेगेटिव, ह्यूमन बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यही अपन किसके साथ करेंगे, फर के साथ करेंगे तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी पे क्या आएगा, नेगेटिव, और फर में क्या आएगा, पॉजिटिव। इस चीज का कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फ्रिक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया सबके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड, दैट इज मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन नहीं, पहले कंडक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है बेटा, कंडक्शन में क्या होता है पता है, इन मेथड ऑफ कंडक्शन हाउ बॉडी विल चार्ज, हाउ बॉडी विल चार्ज। सो इन कंडक्शन we require to conductive body, we require to, in friction we can charge any body, that body may be conductive, that body may be non-conductive, but in a conduction we require to body which must be conductive, which must be conductive। body कैसी होनी चाहिए,
कंडक्टिव ही होनी चाहिए। अगर कंडक्टिव बॉडी नहीं है तो उसको हम लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे। किस मेथड से? किस मेथड से बेटा? कंडक्शन मेथड से। समझ में आ गई चीज? सो इन कंडक्शन लेट वी हैव वन बॉडी दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, that is positively charged, conductive body A, another conductive body B that are initially is insulating. छोड़। Second body that is B, that is कंडक्टिव बट नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं है। इन दोनों बॉडी में पहले कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जैसे ही हम दोनों बॉडी क्या करेंगे, फिजिकली कांटेक्ट कराएंगे, बॉडी ए with the body B with the help of any conductor wire, then this plus charge will distributed on this body as well. Distributed on this body as well. So that means what? पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था. Now this charge is transferred in this body as well. That means in conduction charge will be share on the bodies. चार्ज क्या होता है बॉडी पे? शेयरिंग होती है, चार्ज की शेयरिंग होती है। यहाँ पे कोई न्यू चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है। जो एक बॉडी में पहले से चार्ज था वो दूसरी बॉडी के साथ क्या हो गया? शेयर हो गया। क्या हो गया? अब जैसे इसको अलग कर देंगे तो दोनों बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस पे भी रह जाएगा प्लस और इस पे भी रह जाएगा प्लस। ठीक है, अब कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द बॉडी, कि किस में कितना जाएगा। अगर दोनों सेम बॉडी है, दोनों सेम बॉडी है, सेम नेचर की है, सेम साइज की है, दैट मीन्स चार्ज विल बिकम हाफ ऑन ईच बॉडी। दोनों बॉडी में क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हो जाएगा। सो इन कंडक्शन देयर इज नो न्यू चार्ज प्रोड्यूस, गिवन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अदर बॉडी। तो नेट चार्ज तो वापस कितना कितना, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के भी कितना रहेगा? क्यू ही रहेगा। तो इसमें मान लीजिए क्यू डैश, इस पे क्यू डबल डैश आया, तो नेट चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका? क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड। और नेक्स्ट मेथड दैट इज द इंडक्शन। दैट इज इंडक्शन। इन इंडक्शन मेथड व्हाट वी विल डू, in induction we have a charged body and we have a uncharged body. Uncharged body, both are conductive and we have insulation between them initially. This is the insulation. That means this charged body will not affect uncharged body. So in induction we will charge a uncharged body by virtue of charged body. By virtue of चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी के अफेक्ट से हम लोग एक अनचार्ज बॉडी क्या करेंगे बेटा? चार्ज करेंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे अब इंसुलेशन हटाएंगे, इस बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे, इसको इसके पास में लेके आएंगे। पास में लाते ही क्या हो गया? कंडक्शन बॉडी है दोनों के दोनों, ये बॉडी कंडक्टिव है। ठीक है, अब कंडक्टिव बॉडी में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे बेटा? इस साइड में इसको पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो सारे के सारे इधर इकट्ठा हो गए। तो इस साइड में क्या बचा आपका? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा बचा? पॉजिटिव चार्ज। अब अभी भी देखें इस पे नेट चार्ज तो कितना है? जीरो है। नेट चार्ज तो कितना है? जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देंगे। इसको एज इट इज रखेंगे। अर्थ एक ऐसा सोर्स है जो कितने भी चार्ज को, एक्सेस चार्ज को अपनी ओर अंदर ले सकता है और चार्ज दे भी सकता है। ये नेगेटिव तो आपका एज इट इज रहेगा। जैसे ही अर्थिंग करेंगे, ये अर्थिंग की, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। अब हम सिस्टम को ऐसे कैसे रखेंगे? ठीक है, और अर्थिंग भी हटा देंगे। अर्थिंग हटाने से क्या हो? पॉजिटिव वापस तो आएगा नहीं, यहाँ पे केवल क्या रहेगा? नेगेटिव। केवल क्या रहेगा? नेगेटिव। अब अगर इसको इसके इफेक्ट से हटा दे, अलग कर दे, सेपरेट कर दें, तो वापस से अपने पास क्या हो जाएगा? इस बॉडी पे चार्ज पूरा का पूरा किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो यहाँ पे हमने क्या किया? केवल एक चार्ज बॉडी को यूज किया
उससे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा है, एंड वी प्रोड्यूस ए न्यू चार्ज ऑन द अनदर बॉडी। अब यहाँ पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस बॉडी। किस पे डिपेंड करेगा, इस पे नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, एंड अपोजिट पोलरिटी चार्ज विल बी प्रोड्यूस। यहाँ पॉजिटिव लिया इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव लेते तो कौन सा होता, पॉजिटिव। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन, क्या डिफरेंस है दोनों में, कंडक्शन और इंडक्शन के बीच में। In induction, there is no required of physical contact. In conduction, we require physical contact. In conduction, same polarity charge will be produced. In induction, opposite polarity charge will be produced. So these are the method of charging. Three methods that we discuss. One is friction, one is conduction, one is induction. And another thing that we discuss, that is properties of charge. Properties of charge. So that's all for this session. In next session, we will discuss about Coulomb's law. Thank you, everyone.